Good morning. Good morning everyone and जय मसीह की. गुड मॉर्निंग. थोड़ा ऊपर करना है इसको. Check. Yeah. Okay. Yeah. So everybody's face is glowing and shining today morning. सबकी चेहरा चमक रहा है आज के सुबह. It's because of the picnic, I guess. पिकनिक का कारण हो सकता है. My face is not glowing so much मेरा चेहरा इतना चमक नहीं रहा है because I'm not able to go for picnic. क्योंकि मैं इस पिकनिक में शामिल नहीं हो पाऊंगा. After this, I have to catch a flight at 2 o'clock. So I'll be leaving from the church itself. But I believe all of you will have a really good time. और चर्च का तुरंत मुझे एक फ्लाइट पकड़ना है तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना है. लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छा समय बिताएंगे. So I want to speak just very briefly on what makes a complete church family. और मैं इस विषय के ऊपर थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ. एक संपूर्ण कलीसिया चर्च परिवार कैसे होता है. Okay, what makes a church wholesome and healthy and complete? और किन बातों के द्वारा एक कलीसिया परिपूर्ण होता है और स्वस्थ होता है. It's very important for any church to be healthy. और ये बहुत जरूरी है कि हर एक कलीसिया स्वस्थ रहना है. And there are many things required to make the church a healthy church and a complete church. और वैसे बहुत सारे बातें हैं जिनकी ज़रूरत है जिसके द्वारा एक कलीसिया संपूर्ण कलीसिया बनता है और एक स्वस्थ कलीसिया बनता है. And in order for a church to be healthy, the ministry of the church must be a balanced ministry. और एक स्वस्थ कलीसिया होने के लिए सबसे पहले उस कलीसिया का जो सेवकाइयाँ हैं उसमें एक बैलेंस संतुलन रहना बहुत जरूरी है. So let's pray before we begin into this. और इसमें जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, you are the master, the owner, you are the Lord of the church. स्वर्गीय पिता, आप ही इस कलीसिया का मालिक और प्रभु और चलाने वाला है. You have a plan for the world. और इस संसार के लिए आपके पास एक योजना है. And you use your body, the church, to bless the world. और आपके शरीर जो कि इस कलीसिया को इस्तेमाल करते हैं इस संसार को आशीष देने के लिए. God, as we look into your word today and as we understand the concept of a healthy church and balanced ministry, I pray that you will speak to each one of us and help us to contribute in building a healthy church. प्रभु, जब हम आपके वचन से देखते हैं आज एक स्वस्थ कलीसिया और एक संतुलन के साथ सेवा करने वाले कलीसिया के बारे में, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी आत्मा में अगुवाई करने पाए और हमें सिखाए पाए. I pray that you will take this time and you will take this sermon and build our people, build our faith, build our knowledge, and give us, Lord, zeal to serve you. और प्रभु, आप इस समय को इस्तेमाल करें और इस वचन को इस्तेमाल करें ताकि आप हमें यहाँ पर बढ़ा सके, आप हमें और नया बना सके परमेश्वर, ताकि आपकी सेवा हम कर सके. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Check. Lot better. All right, so I have taken the basic passage for today from Acts chapter 2 verses 42 to 47. और आज की जो मेन वचन है जिसको मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 42 से 47 तक लिया हूँ. So as I said, the church must be a healthy church. और जैसे मैंने बताया था कि एक कलीसिया जो है एक स्वस्थ कलीसिया होना जरूरी है. And what are the factors that contribute in the building up of a healthy church? और वैसे किन किन बात जिसमें शामिल होते हैं जिसके द्वारा एक कलीसिया स्वस्थ कलीसिया बनता है. This week, my heart was, I was ashamed. I was very sad. I was upset for 2 days. My wife was telling me, stop playing this video, because I saw a video on the corruption in the church. Many of you would have seen that. और मैंने पिछले हफ्ते 2 दिन तक मैं बहुत शर्म महसूस कर रहा था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कलीसिया के अंदर जो घोटाला होता है उसके विषय में उस वीडियो में बताया गया था. It was a big news on one of the national channels. और ये बहुत बड़ी नेशनल चैनल पर भी एक बड़ा न्यूज़ बन गया था. And I was like, how many people, I mean, the whole country would have actually seen that. और मैं सोच रहा था कि लगभग पूरा देश इस खबर को सुना होगा. And so it is very important for the church to be healthy. और इसलिए बहुत जरूरी है कि एक कलीसिया जो है स्वस्थ कलीसिया बना रहे. And in order for a church to be healthy, the ministry of the church, all the things that the church does, there must be a balance in all the things
that a church does. और ये It must be a कलिशा- balanced ये ministry. कलिशा को स्वस्थ बने रहने के लिए उस कलिशा के अंदर जितने भी सेवकाइयाँ होती है उसमें संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है। And these are the four arms of the church in which the church must be actively involved. और यही है जो चार बातें हैं जिसमें हर एक कलिशा को एक्टिव होकर के सेवा करना है। Okay, the primary goal of the church is to evangelize the world. और जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है कलिसिया का वो है कि सुसमाचार बांटना। Okay, the primary task of the church that God has given to us is to evangelize the nations and preach the gospel to all nations. तो सबसे पहले जो काम परमेश्वर ने कलिसियाओं को दिया है वो यही है कि हर जातियों के बीच में, हर देशों के बीच में जाकर सुसमाचार की संदेश सुनाना। And as we do evangelism, churches will be planted. और जिस प्रकार हम उस रीति से हम जब सुसमाचार बांटते हैं तो कलिसिया उत्पन्न होती है। But what happens when we plant a church? लेकिन क्या होगा जब हम एक कलिसिया को स्थापित करते हैं? People start coming to the church. लोग कलिसिया में आने लगते हैं Then the second wing needs to be activated. और उसके बाद दूसरी सेवा शुरू होना And that चाहिए। is that the people coming in the church, they need to be discipled. और वो यही है कि जो लोग कलिसिया में आने लगते हैं उनको शिक्षता के ऊपर, शिक्षापन के ऊपर उन्हें शिक्षा देना जरूरी है। The pastors, the leaders of the church, the elders of the church, they must be making disciples. और कलिसिया के अगुवे लोग, पासवान लोग वहाँ पर चेलों को तैयार करना जरूरी है। And therefore we build a gospel community. और उस रीति से हम एक सुसमाचार में चलने वाली एक समाज को हम बनाते हैं। And we do the first thing, we do the second thing, but then this third thing is also very important. और हम पहली दो बातों को कर देते हैं लेकिन ये जो तीसरी बात है ये भी बहुत जरूरी है। And that is that the church, in order for the church's ministry to be balanced, the church should be organized, the church should be involved in the works of mercy and justice. और एक कलिसिया को हर प्रकार में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें दया करुणा की सेवा में भी शामिल होना है और न्याय देने वाली सेवा में भी शामिल होना जरूरी है। The church must be actively involved in blessing the poor. और कलिसिया को लगातार गरीबों को आशीष देने के ऊपर काम करना जरूरी है। And the church must be involved in building up the community and society and the city as a whole. और कलिसिया को जो समाज में वो रहते हैं उस समाज को बढ़ाने में और उस समाज को आगे बढ़ने में मदद करने में भी शामिल होना जरूरी है। You know, one problem of the Christian thinking is क्या एक जो समस्या है जो मसीही लोगों का सोच विचार में होता है, we think that the work of saving souls is more important, but the work of serving souls is not so important. हम इस प्रकार सोचते हैं कि हमें आत्माओं को बचाने वाली जो सेवा है वो बहुत जरूरी है, ना कि जो आत्माओं को जो सेवा करते हैं, सामाजिक तौर पर जो सेवा करते हैं वो उससे कम है। And this is exactly where the mistake is. और यही जहां पर गलती पाया जाता है। God's heart is in saving souls, परमेश्वर का हृदय आत्माओं को बचाने में भी है, but God's heart is also in serving the souls. लेकिन परमेश्वर की आत्मा आत्माओं के लिए सेवा करने के विषय में भी शामिल होता Just है। like Jesus came into this world to save and to serve the lost. और जिस रीति से यीशु मसीह इस धरती पर आए खोए को बचाने और उनकी सेवा करने के लिए। Okay, the work of saving souls is the work of gospel proclamation. और जो आत्माओं को बचाने का जो सेवा है वो इस रीति से होता है कि सुसमाचार को जब हम प्रचार करते हैं वो आत्माओं को बचाने वाला सेवा होता है। But the work of saving souls is the work of gospel demonstration. लेकिन जो आत्माओं को सेवा करने वाली जो सेवा होती है जिसमें हम सामाजिक सेवा करते हैं वो सुसमाचार को प्रदर्शित करने में होता है। Please understand, the Bible teaches both. इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि वचन दोनों बातों को हमें सिखाता है। God loves his people, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, but God loves the world. लेकिन परमेश्वर इस संसार से भी प्रेम करता है। We need to understand that every human being is made in the image of God. और हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हर एक इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। And it is God's desire to build a just community and a blessed society. और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इस प्रकार चाहता है कि परमेश्वर एक न्याय और जस्ट एंड Society. न्याय से भरी हुई एक समाज बनाना चाहता है। But we often give much more
importance to this work at the cost of this work. लेकिन हम ज्यादातर सिर्फ पहली वाली सेवा जिसमें आत्माओं को बचाने का काम होता है उसी को करते हैं और दूसरी सेवा को इनकार कर देते हैं। Church, are you with me? क्या चर्च आप मेरी बात सुन रहे हैं? We have to proclaim the gospel, हमें सुसमाचार को प्रचार करना है, but we also have to demonstrate the gospel. लेकिन उसके साथ साथ हमें सुसमाचार को करके भी दिखाना We है। proclaim the gospel with our words, हम सुसमाचार को इस प्रकार प्रचार करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा प्रचार करते हैं, but we demonstrate the gospel with our works. लेकिन हम सुसमाचार को हमारे कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Paul teaches Titus and tells them, Pastor Titus, tell your church people to be zealous for good works. और पौलुस जब तीतुस को लिखता है वो कहता है कि आप अपने कलीसिया में इस प्रकार का शिक्षा देना कि अच्छे कार्यों में सक्रिय रहना है। So, in order for a church to be healthy, और एक कलीसिया को स्वस्थ बने रहने के लिए the ministry of the church must be balanced. और उनके सेवा को संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। And in balanced ministry, we have seen three things. और उस संतुलन वाली सेवा में हमने 3 विषयों को देखा है। Tell me the first thing. उसकी पहली बात आप बताइए। Evangelism is the first thing. सुसमाचार प्रचार करना पहली बात है। As we evangelize, churches are planted. जैसे जैसे सुसमाचार बताया जाता है तो कलीसिया उत्पन्न होती है। The second work is to disciple people, और दूसरी बात है कि लोगों को चेले बनाना means becoming like Jesus, और यीशु मसीह जैसे बनने के विषय में होता है। obeying Jesus, यीशु मसीह की आज्ञा मानना, following the teachings, यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलना, following the commandments, यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना, loving Jesus. यीशु मसीह से प्रेम करना। In everything that you do, you keep the glory of Jesus as your primary concern. और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को अपने प्राथमिकता समझते हैं। And thereby you build a gospel community और उस रीति से आप एक सुसमाचार का एक समुदाय को or बनाते a हैं। gospel shaped community, a church community which is shaped by the gospel. या इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ऐसी समाज या ऐसी कलीसिया जो सुसमाचार के द्वारा बनाया गया हो। And the third thing is that the church is actively involved in works of mercy and justice among the poor in the city and in the community. और तीसरी बात हमने जो देखा तो वो यही है कि जब इस प्रकार की एक संतुलन की सेवा होती है तो वो कलीसिया दया और न्याय की सेवा में भी अपने समाज में जहाँ कहीं वो रहते हैं वहाँ पर करते हैं। And the fourth work is that in balanced ministry the Christians do good work also. और उसमें हमने ये भी देखा था कि संतुलन होने वाली इस सेवा में लोग जो है अच्छे कार्यों को भी करते हैं। Okay, faith and work. और उसके बाद हम देख रहे हैं विश्वास और कार्य। This is also one of my favorite topics to teach on. और ये मेरे लिए भी बहुत एक अच्छी जो टॉपिक है जिसमें मैं शिक्षा देना पसंद करता हूँ। Christians, मसीही लोग, they are people of faith. वो विश्वास के लोग हैं They believe in God. और वो यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। But unfortunately, many Christians, they are not good workers. लेकिन बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे मसीही लोग अच्छे कार्य करने वाले लोग नहीं हैं। They are not hardworking people. वो ज्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं होते In हैं। their office, they don't have a good reputation of working hard and people of integrity. This is not a reputation that many Christians hold. यदि वो कोई दफ्तर में काम करते हैं वो लोग वहाँ पर ज्यादा मेहनत से काम नहीं करते और उनके लिए एक अच्छा नाम नहीं होता वहाँ पर। And this is where the church also teaches on work a lot. और इसलिए कलीसिया को काम के ऊपर भी बहुत शिक्षा देना जरूरी है। Yesterday, one brother came to me. कल एक भाई मेरे पास आया, He was at work. वो काम कर रहा था, He was in the office. वो दफ्तर में ही बैठा हुआ था, But he was feeling bad that he is not able to attend a Bible study. लेकिन वो बहुत दुखी हो रहा था कि वो बाइबल स्टडी जो उस समय पर चल रहा था उसमें वो शामिल नहीं हो पा रहा था। The thing is that when you do your work in the work hours, when you do good work, when you do quality work, when you do excellent work in your office, you are glorifying God. लेकिन बात यही है कि यदि आप अपने कार्य करने के समय पर आप अपने दफ्तर में रहकर यदि आप अच्छे काम करते हैं, सही रीति से आप काम करते हैं तो उसके द्वारा भी आप परमेश्वर को ही महिमा दे रहे हैं। Christians must be doing good work. मसीही लोगों को अच्छे काम करना जरूरी है। Okay, one is good works, meaning works of mercy and justice.
अच्छी काम मतलब एक तो हमने देख लिया जिसमें दया और न्याय का काम होता है, But Christians must be good workers in their office. लेकिन मसीही लोगों को अच्छे काम करने वाले भी होना चाहिए अपने दफ्तरों They पर। must work hard. उन्हें मेहनत से काम करना जरूरी They है। must be people who come to office on time. वो ऐसे लोग होना चाहिए जो दफ्तर से ही समय पर आते हैं। They must produce quality work, high quality work. उन्हें अच्छे अच्छे लेवल का काम को देना जरूरी They है। must demonstrate excellence in their workplace. अपने अपने कार्यस्थल पर उन्हें उत्तमता दिखाना चाहिए हर एक बातों If में। Christians will not do this, then who will? और यदि मसीही लोग इस प्रकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Because Jesus, whatever work he did excellently. क्योंकि यीशु मसीह ने जो कोई काम किया उसे यीशु मसीह ने उत्तमता से किया We था। follow Jesus, we become like Jesus. हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हमें यीशु मसीह जैसे बनना है। Even in the workplace. अब हमारे कार्यस्थलों पर भी, And in the workplace, we bring glory to God. और उस कार्यस्थल पर भी हम परमेश्वर के नाम को महिमा ले आते हैं। And so in balanced ministry, all these four things are important. और इसलिए जो सेवा जिसमें संतुलन होता है उनमें इस चार काम होना बहुत जरूरी है। Listen to me, only evangelism is not church. और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुसमाचार सुनाना चर्च नहीं कहला जाता Only है। church planting is not church. सिर्फ कलिसियाओं को स्थापना करना ही कलिसिया नहीं होता। We must be making people who are disciples and they're living their life in the society. हमें ऐसे लोगों को बनाना है जो चेले बनते हैं और यीशु मसीह का जीवन को समाज में जीकर दिखाते And we हैं। don't neglect the poor. और हमें गरीबों को कभी इनकार नहीं करना है। After many years of his ministry, Paul went to at that time the head office of Christianity, and he asked the apostles, am I doing the right thing? Am I teaching the right message? And the leaders, you know what they told him? You are teaching the right message, Paul, only one thing, don't forget the poor. और जब पौलुस सेवकाई में उतरा था और बहुत साल तक जब उसने सेवकाई किया और उन दिनों में जो मसीहत का हेडक्वार्टर्स था जो यरूशलेम में था, तब वो यरूशलेम में जाकर के अपने अगुओं से मिला तो पौलुस ने अगुओं से इस प्रकार पूछा कि क्या मैं सेवकाई सही रीति से कर रहा हूँ, क्या मेरी सेवकाई में सब कुछ सही चल रहा है? तो उन अगुओं ने पौलुस को यही बात बताया था कि आप सेवकाई तो बहुत सही रीति से कर रहे हो, लेकिन आपको एक बात याद रखना जरूरी है, आपको कभी भी गरीबों को भूलना नहीं। And the fourth is, Christians must be good workers. और चौथी बात जो हमने आज देखा था वो यही है कि मसीहियों को अच्छे काम करने वाले होना जरूरी है। I have a friend in Gujarat. मेरा एक दोस्त है जो गुजरात में रहता है। Anyway, I met him one time at a conference in Bombay. और मैंने उन्हें एक बार बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहां पर उनसे मिला। We spoke about many things. हमने बहुत सारे बातों के विषय में बात किया था। And he was a businessman. वो व्यापार करने वाला एक व्यक्ति था। He was doing some business in Ahmedabad, Gujarat. वो अहमदाबाद गुजरात में वो कोई काम कर रहा था। So he told me, you know what, in my company, I employed all the Christians. और वो इस प्रकार कह रहा था कि क्या आपको पता है मैं अपने कार्यस्थल पर मैं सारे मसीहियों को ही रखा हूँ। I gave them jobs. मैं उनको नौकरी दिया। He said in 3 years, उन्होंने बोला कि 3 साल में I have thrown out all the Christians, I have all the non-Christians in my company. तो 3 साल के अंदर मैंने सारे मसीहियों को हटा दिया, अभी सिर्फ गैर मसीही मेरे ऑफिस में काम करते And I हैं। was a zealous pastor. तो मैं तो बहुत सक्रिय रहने वाला एक पासवान हूँ। No, my dear friend, this is not a good way. तो मैं उन्हें इस प्रकार कहा कि भाई ये सही नहीं, आपने सही नहीं किया। But he was like, Christians don't do good work. तो वो इस प्रकार कहने लगा कि मसीही लोग अच्छा काम नहीं कर रहे They हैं, make excuses. वो बहुत बहाने बनाते They हैं don't produce quality. और वो उत्तमता से काम को समाप्त नहीं करते They हैं don't give regard. They don't give high regard to their work. और वो अपने काम के प्रति उनके अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। After so many years of experience, I understand him. तो बहुत साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं भी उस भाई को समझने But लगा my अभी। dear friends, let us not have this reputation. लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम इस प्रकार का एक नाम ना बनाएं अपने Whatever लिए। work, whatever job, whatever business you do, please do good work. और जो कोई काम या जो कोई सेवा जो कोई बिजनेस आप करते हो उसमें आप उत्तमता से कार्य करें। So, how do you build a healthy church? और आप किस रीति से एक स्वस्थ कलिसिया को बनाएंगे? The church life must be balanced. आपके कलिसिया की सेवा और उसका जीवन जो है उसमें संतुलन बना रहना जरूरी Church है। planting, चर्च को बनाना, making disciples, चेलों को बनाना, serving the poor, गरीबों की सेवा करना and building cultural leaders by way of teaching people to do good work in their और offices. समाज में अच्छे अच्छे अगुओं को बनाना इस रीति से कि उन्हें सेवा के प्रति, कामों के प्रति अच्छा शिक्षा दे करके। Read this word. कल्चरल लीडर्स,
You see, where are the pastors all the time? अब सोचिएगा कि पासवान लोग ज्यादातर समय कहाँ रहते हैं? Where are the pastors all the time? पासवान लोग कहाँ रहते हैं? We are in the church all the time. हम कलीसिया में ही रहते We हैं don't have outside connect so much. और हमारे पास बाहर के कामों के साथ या बाहर के लोगों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं है। So we are church leaders, तो हम कलीसिया के अगुए हैं, but God has called us to impact the culture, the society. लेकिन परमेश्वर हमें समाज के ऊपर प्रभाव डालने के लिए बुलाया है। So who will do that? तो उसे कौन करेगा? You will do that. आप लोग करोगे। But how will you do that? लेकिन आप लोग कैसे करोगे? If you are a good worker, यदि आप अच्छे काम करने वाले हो you get respect. तो आपको इज्जत मिलेगा। 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीकियों की अध्याय 4 में लिखा है, You will get the respect of outsiders. आपको बाहर के लोगों का इज्जत मिलेगा। When you get respect of your peers in your office, जब आपको आपके साथ कार्य करने वाले लोगों का इज्जत मिलेगा you become a cultural leader. तो आप वहां पर एक अगुवे बन जाते हैं। And there you can speak about Jesus, you can talk about Jesus, and you get opportunities to shine for तो Jesus. वहां पर आप यीशु मसीह के बारे में बात कर सकते हैं और आपको बहुत सारे मौका मिलेगा जहां पर आप सुसमाचार सुना सकते All हैं। four are important. और ये जो 4 बातें हैं ये सब बहुत जरूरी है And this is where the focus of the church should be. और यही जो ध्यान कलीसिया को इसी बातों के ऊपर ध्यान होना So, जरूरी है। how do you make a complete church? तो अब हम किस रीति से एक संपूर्ण कलीसिया बनाएंगे? Let's read this passage. हम इस वचन को पढ़ेंगे। All of you look at the screen, maybe just read together. सब लोग मिल करके इन वचनों को पढ़ेंगे। Come on, start 1, 2, 3. Themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Number daily those who were being saved. Very good. So this is a passage which I think beautifully describes what makes a complete church और family. यही जो वचन है जो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करता है कि एक स्वस्थ कलीसिया किस रीति से बनता Now है। all of you lift up your right hand सब लोग अपने राइट हैंड उठाएं, and show me your fingers. अपने उंगलियों को दिखाएं। Now use your fingers and count the number of items in this passage which I have turned red. Come on. और इसमें जो जितने बातों को मैंने लाल रंग में लिखा है उसे आप गिनना शुरू करें। Not the red words, फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे. The different items. टीचिंग, फेलोशिप, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Somebody says 11. 11 कितने लोगों को लगता है? How many people think it's 11 items? 7 8 10 items. Husband wife clash. Okay, how many of you think it is 10 items? And how many think it's 11? Okay, whether 10 or 11, never mind, it's 10, okay? Okay, so the 10 things. The first thing in this passage, okay, now everything that I'm going to tell you, okay, everything that I will tell you about what makes your church complete is 10 items, and the first one, it's all from this passage. The first one is very simple. There must be a commitment to sound teaching that each one of you need to have. जो अभी जो हम लिस्ट देखेंगे वो सब इन्हीं वचनों से लिया गया है। उनमें से सबसे पहली बात है, जो बात हमारे कलीसिया को एक स्वस्थ कलीसिया बनाता है वो यही है कि कलीसिया को खरी शिक्षा देने में समर्पित होना जरूरी है। Yeah, according to this passage, the people must be interested in receiving sound teaching. और इस वचन के अनुसार लोगों के अंदर एक उत्साह होना जरूरी है कि हम खरी शिक्षा को प्राप्त करें। So commitment to the word of God. और परमेश्वर के वचन के प्रति जो समर्पण। The second is fellowship. और दूसरी बात है संगति। Now fellowship, we think when we spend time, that is fellowship. और संगति के विषय में हम इस प्रकार सोचते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर के समय बिताते हैं तो वो संगति होता है। That's not fellowship. वो संगति नहीं होता। That is not true fellowship. वो सच्चा संगति नहीं होता। Unless you are building the other person up in your communication, it is not fellowship. और जब तक आप आपके साथ बैठा हुआ उस व्यक्ति को आप आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहे हो तब तक वो सही संगति नहीं होगा। Fellowship is not merely enjoying
enjoyment of each other, but building up each other. और संगति सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर के आनंद मना रहे हैं, लेकिन संगति ये होता है जब आप एक दूसरे को मिलकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। As you enjoy the time together, as you spend the time together, you are building one another up. That is fellowship. जब आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ आनंदित होते हैं, उसी समय पर आप एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। The third is communion. और उसके बाद तीसरी बात है प्रभु भोज में शामिल होना। 3 days back, we went to a birthday party in Delhi. और 3 दिन के पहले हमने दिल्ली में एक बर्थडे पार्टी में गए थे। I met one believer there. वहाँ पर मैंने एक विश्वासी से मुलाकात किया। In fact, not only this believer, there is a whole denomination of Christianity. They don't believe in communion. और सिर्फ ये भाई ही नहीं, लेकिन वैसे पूरा एक समुदाय, एक मसीही समुदाय है जिसमें वो लोग प्रभु भोज पर विश्वास ही नहीं They करते। don't believe in communion. वो लोग प्रभु भोज पर विश्वास नहीं करते। And you know, nowadays in many churches they do Prabhu Bhoj communion every Sunday. और आजकल बहुत सारे कलीसियों में इस प्रकार की एक प्रक्रिया हो गया है जहाँ पर हर रविवार को प्रभु भोज होता है, Because it is a very important thing. क्योंकि ये बहुत जरूरी एक बात है। Okay, the communion is a important Christian church discipline. और जो प्रभु भोज जो है ये बहुत जरूरी एक अनुशासन है जिसे कलीसिया को पालन करना है। Okay, which to us is a physical representation of the death and resurrection of the Lord Jesus जो Christ. हमारे लिए जो शारीरिक रूप में एक इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा। The fourth thing is a prayerful community. और चौथी बात है कि प्रार्थना में एक समाज। The fifth one is signs and wonders. और पांचवी बात है चिन्ह और चमत्कार। This thing is another item which many people make it the main thing and many people completely disregard it. और ये चिन्ह और चमत्कार एक और बात है जिसे कुछ कलीसियां हैं अपनी सर्वप्रथम प्राथमिकता मान लेती है, या कुछ कलीसियां उसको बिल्कुल इनकार भी कर देते हैं। Let us not make signs and wonders and miracles everything, और हम चिन्ह और चमत्कार को ही अपना सब कुछ नहीं बनाएं, but let us also not ignore signs and wonders and miracles. लेकिन हम चिन्ह और चमत्कार को बिल्कुल इनकार भी ना कर दें। The Lord did a great miracle in satsang last 3-4 months. और पिछले 3-4 महीनों में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य जो सत्संग में किया A था। small girl Chandni. और एक छोटी लड़की है जिनका नाम चांदनी है। This is a repeat of the first miracle happened 4 years ago. The boy's name is Vansh. और ये उसी रीति से पिछले 4 साल के पहले भी सत्संग में हुआ था, जिस लड़का का नाम था वंश। So this non-Christian family came to satsang 4 months back. और ये जो लोग जो विश्वास नहीं करते थे, ये 4 महीने पहले कलीसिया में आए थे। This girl Chandni was not able to walk. और ये जो चांदनी जो छोटी लड़की थी वो चल नहीं पा रही About थी। 5-6 years maybe. और लगभग उसका उम्र है 5 से 6 साल का होगी। And one Christian auto wala, he just put this family in the auto and just brought. He said, no, you come to church, we'll pray for your child. और एक मसीही भाई है जो हमारे कलीसिया से जो ऑटो चलाता है, उन्होंने इस बेटी को अपने ऑटो में बिठाया और कहा कि चलो आप कलीसिया आ जाओ, वहाँ पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। So we called Chandni in the front. और हमने चांदनी को सबके सामने बुलाया। The mother came, godi uthakar for prayer. और वो चांदनी की माँ ने चांदनी को अपनी गोदियों पर उठाकर आई थी। And the whole church prayed for Chandni. और सारे कलीसिया मिलकर के चांदनी के लिए प्रार्थना किया था। And we all cried. In fact, we said, Lord, these people have come to your house expecting a miracle. Lord, you have mercy, heal this child. हम आंसुओं के साथ चांदनी के लिए प्रार्थना करने लगा और ये कहने लगे कि प्रभु ये लोग विश्वास के साथ आपके भवन में आए हैं और आप कुछ अद्भुत कार्य करें। That first day, और वो पहला दिन nothing happened. कुछ नहीं हुआ। We told Chandni's family, keep coming to church and we'll pray for you. और हमने चांदनी के परिवार को यही बताया था कि आप लगातार चर्च आते रहें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। After 2.5 months or something, और लगभग 2.5 महीने के बाद Chandni began to walk with assistance. और चांदनी दूसरों के सहायता के साथ चलने लगी। Literally, I was like, Lord, मजा नहीं आया, heal this child fully and let this girl walk. और मैं इस प्रकार कहने लगा कि प्रभु इसमें तो मजा नहीं आ रहा, आप पूर्ण तौर पर इस बच्चे को चंगाई करो और उसे अच्छी रीति से चलने में मदद The करो। church continued to pray. और कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रही थी। Last Sunday, we witnessed a miracle. और पिछले रविवार हमने एक चमत्कार को हमने Pastor Sonu देखा। was preaching and leading in prayer time. और पासवान सोनू जो है स्तुति आराधना में हमें अगुवाई कर रहे थे। And he said, people, I have a good news for you. और उन्होंने इस प्रकार बताने लगा कि लोग हमारे पास एक खुशखबरी है। And Chandni was sitting at the very last row with her mother. और चांदनी जो था बिल्कुल पीछे अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। And
Pastor Sonu said, Chandni, come forward. और पास्टर सोनू ने बोला चांदनी आप सामने आ जाओ। And you know what happened? तो पता है आपको क्या हुआ? The whole church was ready, पूरी कलीसिया तैयार था getting ready for prayer time. और प्रार्थना के समय के लिए तैयार हो रहे And we थे। were amazed to see one thing happening. तो हम सरप्राइज्ड हो गए थे इस बात को देखते हुए। Chandni walked up to the stage, walking, running, completely all right. वो अकेले पीछे से स्टेज तक अपने आप चलकर आने लगी The whole church broke into the praise of God. और पूरे कलीसिया मिलकर के प्रभु को महिमा देने लगे। People were crying and thanking God. लोग आंसुओं के साथ प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे It was an amazing atmosphere of God visiting that place that और वो night. बहुत अद्भुत एक वातावरण था वहां पर जहां पर हमने महसूस किया कि प्रभु वहां पर उपस्थित है। This is the power of the presence of God. और यही जो सामर्थ्य है जो जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है, Where God is, जहां पर प्रभु है wonders and signs and miracles will take वहां पर place. चिन्ह और चमत्कार जरूर होगी। We pray for this, हम उसके लिए प्रार्थना करते we हैं, expect this, हम उसके लिए अपेक्षा रखते हैं and according to the purpose and the plan of God, God moves and miracles happen. और प्रभु अपने इच्छा और अपने योजना के अनुसार प्रभु कार्य करता है और चमत्कारों को करता है। So we have signs and wonders in a complete church. और एक संपूर्ण कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार भी होंगे Also there is love and unity. और वहां पर प्रेम और एकता भी होगा। People are जरूर। together. लोग एक साथ रहेंगे। Why is the church organizing picnic for you? और कलीसिया क्यों इस प्रकार की पिकनिक का आयोजन करता Why is the है? church doing this? कलीसिया को ऐसे करने की क्या जरूरत है? So that we can promote love and unity in the church. ताकि हम प्रेम और एकता को आगे बढ़ा So that you सकें, can know each other. ताकि आप एक दूसरे को जान पाए। And as you know each other, you can serve each other. जब आप एक दूसरे को जानने लगेंगे तो आप एक दूसरे के लिए सेवा करने लगेंगे। In fact, the pastor does not even need to get involved every time because you care for one another. और पासवान को हर बार आपके बीच में आने की जरूरत भी नहीं होगा क्योंकि आप स्वयं एक दूसरे की चिंता करते हैं। And also, when there is love and unity, you will make sure there is nobody who is needy और in the जब church. एकता और प्रेम होता है तो आप इस बात को आप देखते रहते हैं कि कोई जरूरतमंद लोग आपके बीच में नहीं रहेंगे। You will make sure there is nobody who is hungry in the church. आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपके कलीसिया में कोई भी भूखा नहीं है। There is joy in the church and there is generosity in the church. और एक संपूर्ण कलीसिया में आनंद होता है और उदारता होता है And then people praise God together. और लोग प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। Think about this. Think about this. इस बात को आप सोचिए, When do we do praise and worship of God? हम कब प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं? On Sunday morning when people get together, we praise God together, और right? जब रविवार की सुबह जब हम इधर आते हैं तब हम मिलकर के स्तुति आराधना करते It's हैं। just a very simple thing to note. In this list, praise is happening at the very end. और ये जो लिस्ट हमने जो वचन से लिया था उसमें हम देख सकते हैं स्तुति आराधना सबसे आखिर में रखा गया है। When all these things are happening, 1 to 8, when all these things are happening, जब 1 से 8 तक की जो बात होती है praises are authentic. और उसके बाद जो स्तुति और आराधना आती है वो सच्चा होता है, It's genuine. वो उसमें कोई झूठ नहीं होता, It's powerful. उसमें सामर्थ होता है। It is a great witness to the love of God at work in the community. और वो एक गवाही उत्पन्न करता है जो प्रभु की प्रेम के लिए जो समाज में कार्य कर रहा है। And finally, as 1 to 9, as these things are happening, look at the final thing. The gospel is spreading and the church is growing. और जब ये 1 से 9 तक की हर एक बात एक कलीसिया में होती है तो उससे क्या होता है आप देखिएगा, सुसमाचार फैलता रहता है और कलीसिया बढ़ता रहता है। All this, where does it start? और ये कहाँ से शुरू होता है? It starts with sound doctrine, good teaching. और ये सब शुरू होता है जब कलीसिया में खरी शिक्षा दिया जाता There है, is fellowship, जहाँ पर संगति होती there है is communion, और जहाँ पर प्रभु भोज होता there है is a prayerful community, और जहाँ पर प्रार्थना के साथ बढ़ने वाले एक समाज होता there है, is miracles happening there, और जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार love होता and है, unity, जहाँ पर प्रेम और एकता होता है। making sure there is nobody needy in the church. और इस बात को ध्यान रखना कि उनके बीच में कोई जरूरतमंद लोग नहीं हैं। There is joy and generosity. आनंद और उदारता होता है, Praise and worship is happening. प्रभु की स्तुति और आराधना होती है And finally, the gospel is spreading and the church is growing. और सुसमाचार फैलता है और कलीसिया बढ़ता रहता है। Many times we do it ulta.
और हम बहुत बार इसे उसकी उल्टा करते हैं And that's why we don't even see any result. और इसीलिए हम ज्यादा कोई रिजल्ट्स को भी नहीं देख पाते हैं। The church will grow when the community will be a active community. और कलीसिया जब तब बढ़ता है जब कलीसिया की समाज जो है वो सक्रिय समाज होती है। What makes a complete church? एक संपूर्ण कलीसिया किस प्रकार बनता है? When all these 10 things are effectively at work in the और church. जब ये सारे 10 बात सही रीति से कलीसिया के अंदर कार्य होता है। How do you do these 10 things? हम कैसे इन 10 बातों को कर पाते हैं? Will Pastor Manova do it? क्या पासवान मनोवा अकेला करेगा? With the help of God, all of us will do it. और परमेश्वर के मदद से हम सब लोग इसे करेंगे। Let's stand up आइए हम सब खड़े हो जाएं and close our eyes. आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। Hallelujah. हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। तेरी महिमा हो। Close your eyes, everyone. सब अपनी आंखों को बंद करें। And I just want all of us right now to just lift up our voices in prayer. Pray for the church, pray for the community. और मैं And चाहता let's हूं कि keep अब सब अपनी going आवाज़ों forward. को उठाकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की एकता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lift up your voice, everyone. Nobody will lead and everyone will pray. कोई यहाँ पर आपको अगुवाई नहीं करेगा, आप सब लोग अपनी आवाज़ों को उठा के स्वयं I प्रार्थना don't करना want शुरू करें। anyone to keep quiet. और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी अभी शांत होकर के रहें। Lift up your voice and pray for the church. अपनी आवाज़ों को उठा करके प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, तेरी महिमा होते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हाले इसको लगा Hallelujah. हालेलुया धन्यवाद। आइए हम सब दुआ करें, अपनी आवाज़ों को उठा लें। Let's just pray. महान स्वर्ग के पिता, महान परमेश्वर, कलीसिया के मालिक और कलीसिया के पिता, कलीसिया के मार्गदर्शक प्रभु, हालेलुया। हम अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, we just pray, Lord, make this church a complete church, hallelujah. Lord, we pray, oh Father God, for the move of the Holy Spirit in this church, oh God. Father, we pray for renewal. We pray for times of refreshing to come in our midst from heaven, oh God, we pray. Father, we just pray there will be sound doctrine given in this church, Lord. We pray, oh God, that people of this church will enjoy true fellowship and lift each other up, oh God. We pray, oh God, that people will have, Lord, respect and honor for your body and blood shed for us, oh God. We pray that you will make this church, Lord, a praying community, oh Lord God. And Father, we pray, oh Lord, हम दुआ करते हैं प्रभु इस कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से यीशु की महिमा के लिए होने पाएं। अद्भुत परमेश्वर, इस कलीसिया को तू सही रास्ते में अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप इस कलीसिया के प्रभु जी मार्गदर्शक हैं, इस कलीसिया को परमेश्वर आप अगुवाई करें प्रभु। Lord, let there be love and unity in this church. Lord, let there be no one who is needy in this church. Lord, fill this church with people who have glad and sincere and joyful hearts, we pray. Lord, make us all about the praise and glory of God. And Lord, we pray, Lord, as we obey you, Lord, we pray that the gospel will go forth and the church will grow. Hallelujah. Lord, we also pray, प्रभु इस कलीसिया से नए चर्च निकलने पाए, Lord. Let church planting happen from this church, Lord. Let new churches be planted from CGC, oh Lord God. Lord, we pray, bless the church, take us in the right path forward, oh Lord. We give ourselves to you. We give ourselves to you, Lord. Let there be a mighty move of the Holy Spirit in this place, among our people, in our hearts. Refresh us, renew us, oh Lord God. Hallelujah. Fill us, Lord, with zeal from heaven for your glory to shine among the nations. Hallelujah. Thank you, God.
for teaching us this morning. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 As we remain standing, I request